زبور نمبر 46 اس کی پہلی آیت۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے زبور 46 اور اس کی پہلی آیت میرا کے ساتھ مل کر پڑھیں۔ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستد مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں۔ خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موجزن ہو اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائے۔ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے۔ خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ خدا صبح سویرے اس کی حکومت کرے گا، قومیں جنجلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آمین آمین آمین۔ ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے زندہ کلام کے لیے۔ خدا ان کا کلام جو کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا، جس کام کے لیے کلام میں لکھا ہے اسے بیچتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے جی؟ مؤثر ہوتا ہے، مطلب اثر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ اثر رکھتا ہے۔ ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہمارا خدا ہماری کیا ہے جی؟ پناہ ہے اور کیا ہے؟ قوت ہے۔ ہمارا خدا ہماری پناہ اور ہماری قوت ہے۔ قوت سمجھتے کیا ہوتی ہے؟ طاقت۔ اگر طاقت ہی نہ ہو تو پھر اسی چل سکنے، پھر سکنے، کچھ کر سکنے۔ طاقت ہے تو ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ طاقت ہے تو ہم دنیا کے کام بھی کرتے ہیں، طاقت ہے تو ہم چل پھر رہے ہیں۔ اگر طاقت ہی نہ ہو تو پھر کچھ کر سکنا میرا بھائی؟ کوئی مائی کا لال جس کے اندر طاقت نہ ہو اور وہ کچھ کر سکے۔ تو اس لیے خدا کے کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے، خدا کا کلام ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے خدا ہماری پناہ ہے اور قوت ہے۔ پناہ کا مطلب جیسے ہم گھر میں رہتے ہیں چھپنے، جیسے مرغی اپنے پروں کو کیسے چھپاتی ہے؟ اپنے پروں کے نیچے۔ وہ ہماری پناہ بھی ہے اور کیا ہے جی؟ قوت بھی ہے۔ میرا باجی کیا ہے جی؟ پناہ بھی ہے اور قوت بھی ہے۔ کیا کیا چیزیں دیکھو خدا نے ہمارے لیے رکھی۔ وہ پناہ بھی ساتھوں ہم دیتا ہے تو قوت بھی سامنے دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ وہ پناہ بھی ہمیں دیتا ہے اور قوت بھی ہمیں دیتا ہے۔ ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں جڑا خدا سے میرا پیار کرتا ہے، جو ہمیں قوت دیتا ہے اور ہمیں پناہ دیتا ہے، اور ہمیں جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپاتی ہے، وہ بھی اپنے بچوں کی ایسے رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں دیکھا ہے۔ اس لیے خداوند میری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں کیا رہوں گا جی؟ مستقر رہوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو اس میں بھی میں مضبوط رہوں گا۔ وجہ کیا ہے کہ میرا مددگار خدا خود ہے۔ میرا مددگار خدا خود ہے، اس لیے میں مستقر کا مطلب ہے مضبوط رہوں گا۔ کیا رہوں گا جی؟ مضبوط رہوں گا، پھر بھی میں گھبراؤں گا نہیں، کیونکہ خداوند میرے ساتھ ہے۔ خداوند میرے ساتھ ہے، خداوند میرا زور ہے، خداوند میری قوت ہے۔ اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، ہم کو کچھ خوف نہیں۔ جو نہیں گھبراتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہو جائے گا، اونج ہو جائے گا، پتہ نہیں کی سائنساں لاندے رہتے ہیں۔ سارا باجی کی سائنساں لاندے رہتے ہیں، کیسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں۔ جنہیں خدا کی سمجھ آ گئی ہے، جو جانتے ہیں کہ خدا ہماری قوت ہے، جو سمجھتے ہیں کہ خدا ہماری پناہ ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ کیا ہو جائے جی؟ زمین ہی الٹ جائے، جتنے سے رہنے وہی الٹ جائے۔ یہ کیسی بڑی بات ہے، سب سمجھ آ رہی نا؟ کیسی بڑی بات ہے کہ خواہ یہ زمین الٹ جائے۔ الٹ جانے کا مطلب ہے جی چل رہے ہیں تو پٹھی ہو جائے۔
फिर भी हमें कोई खौफ नहीं है, इसलिए कि खुदा हमारी पनाह है, वो हमारी मददगार, वो हमारा मददगार है। इसलिए वो मुसीबत में, परेशानी में, हर जगह हमारे साथ है। वो हमें क्या करेगा जी? संभालेगा। क्या करेगा जी? संभाल। वो हमें हौसला देता है, वो हमें दिलेरी देता है, और वो ऐसा खुदा है। उसने कहा मैं आज, कल, बल्कि अब तक यकसां, वो कभी भी बदलता नहीं। वो थोड़ा आज उठे तो कहना मैं आज प्यार करूंगा अपने खादम में, सुबह उठकर बोला नहीं हूँ थोड़ा प्यार करना, वो आज, कल, बल्कि अब तक। यही तो खुदा है, यही तो खुदा है कि उसकी मोहब्बत हमेशा यकसां, उसकी मोहब्बत हमेशा किसी बाजी समझ गए, उसकी मोहब्बत हमेशा यकसां बराबर रहे। वो कभी उतरे थले नहीं जाता। क्यों? कि वो क्या है जी? खुदा है। वो दुनिया, पूरी कायनात, बल्कि आलम, सारी चीज़ों का खालिक और मालिक है, और वो चाहता है कि तुम मेरी पनाह में रहो। मेरी कुव्वत जब तुम्हारे साथ होगी तो तुम किसी भी मुसीबत में घबराओगे नहीं। इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, खा ज़मीन उलट जाए और पहाड़ समंदर की तह में क्या हो जाएगी? डाल दिए जाएं। पहाड़ जड़े बड़े बड़े मैंने नारायण का गान किया ना सारा बाजी, कितने बड़े बड़े पहाड़, कहता सारे पहाड़ पहाड़ थले छोड़ देते जान। इतने बड़े पहाड़ जब यूं देखते हैं इतने गर्दन करके भेजे। ये बात कह रहा है कलाम, इस चीज की शहादत दे रहा है, बता रहा है कि खा वो सारे पहाड़ तय में डाले जाएं तो भी हमें कुछ खौफ ना हो। क्यों? कि हमारा खुदा हमारी मददगार है, खुदा हमारा मददगार है, खुदा हमारी पनाह है, खुदा हमारा जोर है, खुदा हमारी कुव्वत। आमीन। तो इसलिए घबराना नहीं। ये तो मसले मसाइल आते रहते हैं जिंदगी। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात एक लिखी, कलाम भी बल्कि यही कहता है, जिसके लिए दाऊद नबी लिखते हैं, कहता अच्छा हुआ, क्या कहता है? अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई। कहता अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख जाऊं, ताकि तेरे आइन सीख जाऊं। अरे खादमों पर, लोगों पर, ईमानदारों पर मुसीबतें इसलिए आती हैं ताकि खुदा का बंदा कहता है जब मेरे ऊपर मुसीबत आई तो अच्छा होया आई ताकि मैं आइन ताकि मैं उसके आइन सीख गया। तो इसलिए मुसीबत हमें खुदा के आइन सिखाती है, मुसीबत हमें खुदा के करीब लेके जाती है। मुसीबत से हमें ये आइडिया होता है कि मैं अपनी ताकत, अपनी अकल से कुछ भी नहीं कर सकता, खुदा की कुदरत अगर मेरे साथ है तो फिर सब कुछ हो सकता है। आमीन आमीन। तो इसलिए दाऊद नबी कहते हैं कि अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन। इसलिए भी हम पूरा ज़बूर 61 पढ़ लें। तीसरी आयत को पढ़ें आप जरा अपना मेरा बच्चे। खुदा उसका पानी क्या लिखा है जी? शोर मचाए। पानी कभी गया सी मेरे ख्याल से जो सजाने से ना अपना फूफी तक केड़ा पिंड सजाना तो सजाने जब जाते थे वो थे वेखन जाते हेड जड़े तो पानी का शोर, इतना शोर होता, मैं तो जानता नहीं समय का, मैं नहीं जाता, तुसी देखो इतना शोर होता है पानी का। तो देखिए वो ये लिख रहा है, खुदा का कलाम बता रहा है कि भले पानी का शोर कितना भी हो जी, उसका पानी शोर मचाए, हाँ उसका पानी शोर मचाए और मोजज़न हो और पहाड़ उसकी क्या हो जी? दुगयानी से क्या हो जाए? हिल जाए। क्या कुदरत। लेकिन कह रहा फिर भी मुझे खौफ नहीं। इतनी बड़ी बात है, पहाड़ हिल जाए, समंदर के पानी, जमीन उलट पुलट हो जाए, मुझे कुछ खौफ नहीं होगा। वजह क्या है? सबब क्या है? कि खुदा मेरे साथ। मेरा ईमान ये है कि खुदा बचाने वाला मेरे साथ। एक दिन आएगा, एक दिन ऐसा होगा, वक्त ऐसा आएगा कि हम खुदा के जलाल के लिए उसके बड़े बड़े कामों की गवाही दें। यस, क्योंकि खुदा हमारे साथ है, वो हमारा जोर है, वो हमारी कुव्वत है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारा भरोसा है, वो हमारा छुड़ाने वाला है। आमीन आमीन। इसलिए कलाम कहता है कईयों को रथों का, कईयों को घोड़ों का,
हर किसी को पता नहीं किस किस का भरोसा, लेकिन हमें अपने खुदा का भरोसा है। आमीन, बेशक, हालेलुया। हमें किसका भरोसा है जी? हमें अपने खुदा पर भरोसा है कि वो हमारा जोर है, वो हमारा जोर है। इसलिए क्या ये सारी चीजें उलट पुलट हो जाएं, सानू डरन की कोई लोड़ है? दसो हाँ सारा बाजी, हमें को डरने की लोड़ है? नो 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 नो। ईमान पे खड़े रहे, देखें काम कैसे होते हैं। जो कुछ आप कह लेंगे आपके लिए हो जाएगा। यस। अरे कहीं मुर्दा जिंदा हो जाए तो मुर्दा जिंदा, कहीं कैंसर चला जाए कैंसर चला जाए, कहीं वेंटिलेटर से मरीज उठ खड़ा हो, वो क्या वेंटिलेटर से उठ खड़ा हो। इसलिए कि खुदा हमारे साथ, खुदा हमारा जोर है, वो हमारी सिपर है, वो हमारी चट्टान है। तो इसलिए हमें घबराना नहीं है। चौथी आयत, एक ऐसा दरिया है, एक ऐसा दरिया है। देखिए जी बाइबल किस दरिया के बारे में बता रही। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को यानी हक ताला के मकदस मस्कन को क्या मिलती है जी? क्या मिलती है जी? फहद का मतलब क्या है? क्या मिलती है? खुशी मिलती है। एक ऐसा दरिया है डेविड भाई, एक ऐसा दरिया है जिस दरिया से वो दरिया यीशु है। वो कौन है जी? वो यीशु है जो खुशी अता करता है, जो क्या देता है? जो तसल्ली देता है, जो इत्मीनान देता है, जो जोर देता है, जो संभालता है और जो खुशी अता करता है। और फिर जब उसकी खुशी होती है या उसकी तरफ से खुशी मिलती है, उसमें मिलावट नहीं होती, दर्द नहीं होता। ये बड़ी बात है। हालेलुया। ये बड़ी बात, ये समझने की बात। जब वो इज्जत देता है, जब वो सरफराज करता है, तो फिर उसमें उसकी जब फेवर होती है तो फिर कोई मुखालफत नहीं है, फिर जोर होता है, फिर कुव्वत होती है। इसलिए हमें डरना नहीं, परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है, वो हमारा जोर है, वो हमारी कुव्वत है, वो हमारी चट्टान है, और वो हमारे छुपने की क्या है जी? जगह है जी। मेरा बच्चे आगे पढ़े। खुदा उसमें है। खुदा किसमें है जी? उसमें है। उसे कभी जुम्मश होगी? जुम्मश का मतलब का उच्ची सारी दसना, हिल जाना, घबरा जाना, डर जाना। जुम्मश नहीं कहा जाता, कहते यार जुम्मश कहा गया है। जुम्मश का मतलब हिल जाना। वो कभी भी हिलेगा नहीं जी, घबरा जाना, हिल जाना, अपनी जगह से हट जाना, लेकिन वो कभी भी नहीं हटेगा जिसकी कुव्वत खुदा है, जिसका जोर खुदा है, जिसके साथ खुदा है। अब्राहम 24 साल बियाबान में चलता रहा, फिरता रहा, इस ईमान पर, इस उम्मीद पर कि मेरी कुव्वत मेरा खुदा है, मेरा जोर मेरा खुदा है। वो जंगल के अंदर मंगल को लगाने की कुदरत रखता है, वो नामुमकिनात को मुमकिनात में बदल कर रख देने वाला खुदा है। हालेलुया। उसके बाद कुछ नहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसने कहा इतना कुछ दूंगा कि कोई भी गिन नहीं सके। आमीन। असल में हम लिमिटेड है, हम क्या सारा बाजी? लिमिटेड सोच है इंसान की। इंसान की सोच क्या? लिमिटेड। लेकिन हमारा खुदा अनलिमिटेड खुदा। आमीन। आमीन। एक बात मुझे याद आई, जब एक बेवा के पास खुदा का खादम जाता है तो कहता पहला मैनू की खुआ, रोटी खुआ। तो कहती साढ़े को दो ही थे कि इन्ना क्वाट है, बस बनावांगे ते खावांगे ते की होएगा है, अपना संगाबाजी खावांगे ते। उन्हें कहा पहला मैनू रोटी दे तू, बस मैं खुदा दा खादम हाँ, तू मेरी खिदमत कर, देख पे लगे की होएगा। उसने कहा मैं तो लोगों का बड़ा कर्जा देना है, मेरे पास तो पता नहीं क्या क्या मसाइल हैं, मसाइल है ही नहीं। इतना को रोटी होगी खानी होने से खा पी के खत्म हो। उसने कहा जितने तेरे को बर्तन है ना आस पड़ोस तो पड़ोसियों तो भी ले आ, जितने भी बर्तन हैं आस पड़ोस से आज ले आ,
آج خدا کا خادم تیرے گھر آیا ہے، آج دیکھ جب اس کے جلال کو دیکھے گی تو خدا کے خادم نے جب دعا کی تو تیل بہنا شروع ہو گیا۔ کیا بہنا شروع ہو گیا تھی؟ تیل بہنا شروع ہو گیا۔ وہ برتن مک گیا، تیل نہیں رکیا۔ پھر اس نے پوچھا اس میوا سے کہ اور برتن ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں وہاں میرے کو کوئی نہیں۔ انہوں نے پھر سوچ اور برتن ہیں؟ اس نے نہیں۔ جب اس نے کہا نہیں تو خود کے خادم نے بھی کہا اوکے اب بس، تو تیل آنا بند ہو گیا۔ انلیمیٹڈ چیزیں، نہ ختم ہونے والی چیزیں۔ اس نے کہا لے آج جتنے برتن تجھے چاہیے۔ ہم اصل میں تھوڑے سے برتن پاتے ہیں تو ساڑھے کو نہیں سنبھالے جاتے، انہوں نے جو نکل بات پڑک پڑک پہی میں، کیونکہ اس خدا پر بھروسہ نہیں جس نے دنیا بنائی۔ ہمارا ایمان اس پر نہیں جو چلا رہا ہے سارا کچھ، اس پر ایمان نہیں کہ جو کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ ہمارا ایمان اس پر نہیں ہے، ہماری قوت کا بھروسہ اس پر نہیں کہ وہ ہماری قوت ہے، ہمارا ایمان یہ نہیں کہ وہ ہماری پناہ ہے، ہمارا ایمان یہ نہیں کہ ہمارا بچانے والا وہ ہے اور وہ رحیم ہے، وہ رحم کرتا ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ تو بڑا پیار کرتا ہے، وہ تو پیارا سونا جا خدا ہے۔ آمین۔ اس لیے انلیمیٹڈ جب چیزیں بھر جائیں تو پھر کرنا کہ آج میری صاحب میں گال ہو رہی تھی تو جب متی رسول یوحنا اور وہ مچھیاں پھاڑتے نے اپنا جال چھوڑ دینے تو کوئی پورا اندر بڑی محنت آج کی تھی ایک بھی مچھی ساڑھے کول اب وہ کیا کہتے ہیں ماہی گیر تھے، وہ کیا تھے جی وہ یوحنا ماہی گیر تھے، لیکن ایک بھی مچھلی ان کو آج نہیں لگی۔ یسوع نے کہا جال ڈالو۔ یسوع نے کیا کہا جی؟ کہتے نہیں استاد اسی بڑی اسی ماہر ہیں مچھلیاں پکڑنے، اسی کیا ہم ماہر ہیں، ہم جانتے ہیں کہ مچھلیاں کہاں ہوتی ہیں، ہم پانی کا اندازہ دیکھ کر لگا لیتے ہیں کہ یہاں مچھلیاں ہوں گی اور ہم وہاں جال پھینکتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ ایکسپرٹی ہے، ہمیں یہ مہارت بخشی گئی ہے۔ تو اس نے کہا تمہیں یہ مہارت بخشی گئی ہے، تمہیں یہ ایکسپرٹی بخشی گئی ہے، لیکن جس نے بخشی ہے وہ کہتا ہے گہرے میں جان ڈالو۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جس نے یہ تمہیں ایکسپرٹی بخشی ہے، جس نے یہ مہارت تمہیں بخشی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آج گہرے میں جان ڈالو اور آگے لے جاؤ۔ وہ سمجھ گئے کہ جڑا کہہ رہے ہیں نا واقعی انہوں عقل سانو یہ نہیں بخشی کسی بیچ کے اندازہ لا لینے کہ اتھے مچھلیاں ہیں نہیں، اتھے مچھلیاں ہیں نہیں۔ تو اس نے بولا آج وہی ہمارے سامنے موجود ہے، کہنے نے اسی تیرے کہن تے جال پا یا تیرے کہن تے اسی تے بڑی محنت کی تھی، تھک گئے ہوں تے جال تو لینے سے جان دی تیاری کر رہے ہیں، لیکن تیرے کہنے پہ جال بولا ڈالو تو صحیح نہ ڈالو تو صحیح۔ پھر جب جال ڈالا تو انہیں سمجھ آ گئی کہ جال پھٹنے لگے۔ جال جی کلام میں یہی لکھا ہے جال پھٹنے لگے۔ پھر اپنے شریکوں کو آواز دیتے ہیں، کن کو جی؟ شریکوں کو۔ نال دے ساتھ ساڑھے تانے پھٹ جان، لیکن شریکان نہیں بولا لو پھٹ جان، لیکن کلام کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے کن کو بلایا؟ شریکوں کو بلایا۔ کیوں؟ کہ کائنات کا خالق اور مالک امن اور سلامتی کا شہزادہ یہ تربیت دیتا ہے کہ پیالہ جب لبریز ہو تو اس سے دوسرے برکت کو حاصل کرے، لیکن شیطان یہ نہیں چاہتا۔ شیطان چاہتا ہے میں ہی میرا ہی پیٹ بھرا رہے اور دوسرا بھوکا مرے تو ذرا میں سونا لگے، لیکن خدا ایسا نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا ہے جب آپ کے پیالے لبریز ہوں تو اس سے دوسروں کو برکت بھی ملنی چاہیے۔ آمین۔ یہ ہے خدا کے لوگوں کا کام، یہ ہے خدا کے اندر جنہیں پہچان ہوتی ہے، جنہیں خدا کی نزدیکی ہوتی ہے، جنہیں خدا کی قربت نصیب ہوئی ہوتی ہے، وہ ایسا کام کرتا ہے، وہ ایسا کام دوسرے آدھے نے اس دولت مند کی طرح کہ ہم نے اتنے محنت تو کمایا ہے، پتہ نہیں پھر موقع ملے تو شاید نہ ملے، لیکن جن کا بھروسہ خدا پر ہے وہ اپنا سارا کچھ ایمان پر خرچ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی آپ رسولوں کی بات سن کر پڑھ کر دیکھ لیں، ہسٹری پڑھ کر دیکھ لیں، ابتدائی کلیسیا کو دیکھ لیں کہ وہ جو کچھ بھی ان کے پاس لوگ لاتے تھے کرتے تھے، ان سے وہ خدا کا کام مسیحت کا کام
और आज तक हम बाइबल में उनका नाम पढ़ रहे हैं और उनके लिए लिखा गया है कि जब वो नया शहर यरूशलेम आएगा उन 12 लोगों के दरवाजों पर नाम लिखे हो। क्यों? कि उन्होंने मसीह की बादशाह के लिए जो कुछ उनके पास था उन्होंने खर्च कर, जो कुछ उनके पास था उन्होंने मसीह की बादशाह के लिए खर्च कर दिया। प्यार पैसे से, दौलत से, ताकत से नहीं की, बल्कि खुदा से प्यार किया, बल्कि खुदा से प्यार किया, क्योंकि देने वाला वो है। अगर वो अक्ल बंद कर दे, हमारे बाबा जी थे, बाबा सैमुअल जट साहब, वो कहते खुदा जब किसी को सजा देता है तो उसकी अक्लों को बंद कर देता है। वो कहता डंडे नहीं मारता, सोटे नहीं मार, वो अक्ल बंद हो जाती। जब अक्ल बंद हो जाती है तो फिर हमें समझ नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए लिखा खुदावंद मेरी क्या है जी, पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार। इसलिए मुझे कुछ भी खौफ नहीं है कि खुदा हमारा जोर है, खुदा हमारी कुव्वत है, खुदा हमें जिसने खड़ा किया है वो फिक्रें भी खुद ही करेगा, वो संभालेगा भी खुद ही, वो जोर भी खुद ही देगा, वो अपने जलाल को भी खुद ही जाहिर करेगा। आमीन। इसलिए सानू कोई परेशानी होनी चाहिए जी। मेरा बच्चे कितों छड़े से को पढ़ाऊंगा, याद रखना तो मेरे नाल चल रहा है। 5वीं आयत, खुदा सुबह सवेरे उसकी कुम्मत, खुदा सुबह सवेरे उसकी क्या होता है जी? कुम्मत का मतलब क्या है? जोर, मददगार, जोर। कुम्मत का मतलब है जोर, ठीक है। तो लिखा है वो सुबह सवेरे फिक्र करता है अपने बच्चे। सुबह सवेरे ही वो अपने बच्चों की क्या करता है? जोर दे देता है, कुव्वत दे देता है। अगर जोर ही मुक जाए तो किसी काम दे है वासी, जोर ही खत्म हो गया, हम यूं चल कर यहाँ नहीं जा सकते। एक बहुत अमीर शख्स की स्टोरी है, बहुत पैसा उसके पास, जहाज उसके अपने थे, लेकिन हमें आइडिया नहीं उसकी नेमतों का। पता ये पलकें हमारी जो नीचे ऊपर होती है ना, ये अगर ना हो ना तो हमारी आंखों से पानी बहता रहे। हमारी आंखों से क्या बहता रहे जी? तो ये खुदा ने एक एक चीज जो बनाई है, साइंसदान तो हम पहुंचे, खुदा ने कितना खरबों साल पहले क्या क्या बना दिया। तो ये आंख जो हमारी, जो हम जब झपकते हैं तो इट मीन कि हमारी सेफ्टी के लिए हमारी आंख की प्रोटेक्शन करते हैं, अंदर कोई चीज ना जाए, कुछ ना जाए, उसको सेव रखते हैं। तो उस शख्स की आंखें ऊपर नीचे होना बंद हो, उस शख्स की करोड़ों रुपया उसने खर्च किया, दुनिया के माहिर डॉक्टर उसने बुलाए, दुनिया के माहिर डॉक्टर उसने बुलाए, लेकिन उसकी आंखों की जो इस कमजोरी को ठीक ना कर सके। तो जिसका भरोसा खुदा पर होता है, 1 मिनट सेकंड लगता है, सांस किधर का किधर चला गया कोई पता नहीं। तो इसलिए हमें खुदा से खौफ में रहना चाहिए, खुदा से डरना चाहिए कि खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। जिसने दुनिया बनाई है वो तो सबसे प्यार करता है, वो तो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो तो चाहता ये है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। इसलिए वो हमारी क्या जी? कुम्मत करेगा जी। कौमें झुंझुलाएं जी, सल्तनतों ने जुम्बश खाई, यस, वो बोल उठा, जमीन पिघल गई। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। हालेलुया। याकूब का खुदा हमारी क्या जी? पनाह है, और वो हमारे साथ है। हमें कभी भी परेशान और घबराने की जरूरत नहीं है। खुदावंद सब पर रहम करे, खुदावंद सबको बरकत दे, खुदावंद सबको हिकमत दे, सबको दनाई दे, सबको अपने साथ चलने का फजल अता करे। हम खादम होते हुए दुआ करते हैं कि खुदावंद सबों पे रहम करे। लेकिन जो कोई खुदा के साथ चलेगा, खुदा के कलाम पर अमल करेगा, खुदा उसको महफूज रखेगा जी। खुदा उसको क्या रखेगा जी? महफूज जरूर रखेगा। लेकिन जो नहीं रहना चाहेगा फिर उसका मामला अपना है। आगे जी, आगे 8वीं आयत हमें क्या बताती है? खुदावंद के कामों को देखो, आओ खुदावंद के कामों को देखो कि उसने जमीन पर क्या क्या वीरानियां की हैं। सुने जी, वो जमीन की इंतहा तक जगमगूफ कराता है। यस, वो कमान को तोड़ता, यस, और नेज़े के टुकड़े कर डालता है।
यस, वो रत्तों को आग से जला देता है। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। जान, खामोश रहो और जान लो। क्या रहना जी? खामोश। अजी खामोश नहीं रहना। खामोश रहना असल बड़ा औखा काम है। खामोश रहना असल में बहुत औखा काम है। ऐ जी जुबान दिती ना, ये रुकती नहीं। और लिखा है याकूब का खत पढ़े तो ये कहता है जुबान एक ऐसा आला है कि ये पूरे जंगल को आग लगा दे। पूरे जंगल, तीनी तो भी ज्यादा काम तेज कर। तो कहता है जिन्हें इनू काबू रख लिया ना तो समझने सारे काम हो। इसको काबू रखना बड़ा। लिखा है कलाम में पढ़े ना, तो लिखा है जहाज़ों को हम उन्हीं रस्से डाल के उनको लंगर कहते हैं, उससे हम जहाज़ों को तो कंट्रोल कर सकते हैं। बड़ी बड़ी मशीनों को तो हमने कंट्रोल किया है, लेकिन ए मशीन कंट्रोल बड़ी मुश्किल है। इनको क्या लंगर पाई है? इसको कौन सा लंगर डाले? इसको उस वक्त लंगर लगेगा जब हम खुदा के खौफ में, जब हम जानेंगे कि खुदा हमारा जोर, खुदा हमारी पनाह है। उस वक्त ये जुबान उसकी हमदो सताइश करेगी, उस वक्त उसकी शुक्रगुजारी करेगी। इसको कंट्रोल कर सकता है तो खुदा कंट्रोल कर सकता है। आमीन। इसलिए हमें खुदा के पास आना चाहिए। जी, मैं कौमों के दरमियान सरबुलंद हूँगा। मैं सारी जमीन पर सरबुलंद हूँगा। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है। केड़ा खुदा हमारे साथ है जी? लश्करों का खुदा हमारे साथ है। तो फिर डरने की लोड़ है? जोरावर हो जाए आप। अब क्या हो जाए? जोरावर हो जाए, क्योंकि लश्करों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदों का खुदा हमारा जोर है। आमीन। आमीन। वो हमारी कुव्वत है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारे छुपने की जगह है। तो इसलिए हमें किसी चीज का भी खौफ नहीं करना। जी, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। याकूब का खुदा हमारी पनाह है। इसलिए आज तो बात डरना जो है ना, एक आध दिन डरना सा किधर को, सिर्फ डरना सिर्फ खुदा से। जब खुदा से डरेंगे तो फिर देखें खुदा आपकी ज़िंदगी में क्या खुश करेगा। एक हवाला और पढ़ेंगे, टाइम है मेरे पास 5 मिनट। दूसरा करंथियों और रसूल का दूसरा खत है जी, करंथियों के नाम, उसका दूसरा करंथियों 4 बाब और उसकी 8वीं आयत। दूसरा करंथियों 4:8, उसका 4 बाब और 8वीं आयत मैं पढ़ रहा हूँ कि लिखा है, हम हर तरह से मुसीबत तो उठाते हैं, हम हर तरह से मुसीबत तो उठाते हैं, लेकिन लाचार नहीं होते। लाचार का मतलब समझते हैं? जी जी। बेबस, जिसका कोई चारा ना हो, कोई मददगार ना हो, कोई संभालने वाला ना हो। कहना हम हर तरह से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार, मतलब ऐसा नहीं सोचते कि कोई हमारा मददगार नहीं है, हमारा को बचाने वाला नहीं, हमारा को छुड़ाने वाला नहीं, इसलिए हम कभी भी उस मुसीबत से नहीं घबराते, क्योंकि हमारा जोर खुदा है, हमारी कुव्वत खुदा है और हमारा बचाने वाला, फिदिया देने वाला हमारे साथ है। आमीन। इसलिए कि हम लाचार नहीं हो, लाचार नहीं होना कभी। आज तो बात लाचार आपने उन्हें लाचार समझना भी नहीं। हमारे साथ कौन है? खुदावंद हमारे साथ है, खुदावंद हमारा जोर है, वो हमारा फक्र है। आगे वाली बात मेरा भाई पढ़ो तुझे को। मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं। नाम याद, हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते। हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद आज के बाद नहीं होना। क्यों? कि खुदा का ये वादा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाए। इसलिए वो कहता है हैरान तो होते हैं कि सब कुछ कैसे होगा, लेकिन ना उम्मीद नहीं होती। उम्मीद एक हमारे पास है कि हमारा फिदिया देने वाला, हमारा बचाने वाला, हमारा जोर, हमारी कुव्वत, हमारी चट्टान, हमारा फक्र हमारे साथ है। आमीन। आमीन।
आमीन। इसलिए पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को भी यही उम्मीद दे रहे हैं, यही समझा रहे हैं, यही नसीहत कर रहे हैं कि ना उम्मीद हम नहीं होते। आगे, सताए तो जाते हैं, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं, मगर अकेले नहीं छोड़े जाते। सताए तो जाते हैं, लेकिन तेरा जेड़ा जिन्हों सताना है ना समझे कि मैं उसको सता रहा हूँ, और नाम यीशु ने भी सता रहे हैं, नाम यीशु को भी सता रहा है। लिखा है हम सताए तो जाते हैं मगर अकेले छोड़े नहीं जाते, अकेले छोड़े नहीं, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। वो जिसे बुलाता है उसका जोर भी खुद बनता है। वो कहता है मैं अपने खादम की किसी भी बात को मिट्टी में नहीं मिलने देता, मैं अपने खादम की किसी भी बात को मिट्टी में नहीं मिलने देता। वो अपने खादमों के लिए खुद जंग लड़ता है, वो अपने खादमों के लिए खुद खड़ा होता है। जब हिस्से बांटे गए थे ना, पुराने अहदनामा में जाके पढ़े तो सांप को किसी को पैलियां मिल गई, खेत मिल गया, किसी को सोना मिल गया, किसी को चांदी मिल गई, सबको सारे हिस्से बांट दिए। खातमा को कुछ नहीं मिला, काइनों को कुछ नहीं दिया। तो काइनों ने पूछा खुदावन सारन तो सारा कुछ देता है ते सानू की देता है, असी तेरे खादम तेरी खिदमत करने आ, तेरे वास्ते दुख सहने आ, मुसीबत सहने आ, गल्लां सुनने आ, सानू की। तो खुदा ने कहा तुम्हारा मैं हूँ, आमीन, तुम्हारा। इसलिए इन दुनिया वालों को तो मैंने दुनिया की चाहत दे देती, लेकिन मेरे तुम हो और मैं तुम्हारा, आमीन। मेरे तुम हो और मैं तुम्हारा। इसलिए तुम्हें इस बात पर फक्र होना चाहिए कि खुदा मेरे साथ है। इसलिए उसने अब्राहम से कहा कि जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा, जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा, जो तुझे मुबारक कहेगा उसे मैं मुबारक करूंगा। आमीन। यह है खादमों की इज्जत, यह है खादमों की रिस्पेक्ट, बुलाए हुआ खादम। उसने कहा जो तुझ पर लानत करेगा उस पर मैं लानत करूंगा, और जो तुझे बरकत देगा उसे मैं बरकत दूंगा। खादमों की अहमियत, वो अपने खादम की किसी भी बात को मिट्टी में नहीं मिलने देता। वो खुदा अपने लोगों के लिए खुद जंग लड़ता है। आमीन जी। गिराए तो जाते हैं, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। वजह सबब कि खुदा हमारे साथ है, खुदा बचाने वाला हमारे साथ है, फिदिया देने वाला हमारे साथ है। गिराए तो जाते हैं मगर हलाक नहीं होते, क्योंकि खुदा खुद हमारे साथ है। आमीन, आमीन, क्योंकि खुदा खुद हमारे साथ है। तो इसलिए कभी भी परेशान सारा बाजी नो, आज तो परेशानी का लफ्ज जरा डिक्शनरी चो कर दो, निकाल दें, डिलीट कर दें, खारिज कर दें। उस पर ईमान रखें कि जो अपने वादों का सच्चा खुदा और नस्ल दर नस्ल वफादार खुदा है। हम उस खुदा की बंदगी करते हैं, हमारा फक्र हमारा खुदा है, हमारा जोर हमारा खुदा है। अगर उसने बुलाया है तो वो जोर से इस्तेमाल भी वही करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। हम उस खुदा की बंदगी करते हैं, हम उस खुदा की परस्तिश करते हैं कि जो बादशाहों का बादशाह और खुदा बंदों का क्या है जी, खुदा है। तो इसलिए लिखा हम गिराए तो की तो पड़े सी गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं। खातम ये करते हैं काम, हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं। मैं कल ना नेट ते पढ़ रहा सा, एक शेर बड़ा अच्छा आया इस नेट ते वो कहता है जेड़े रस्से से आप ही बनाने ना तो उन्होंने से आप ही फा ले लेने। हाँ सच कह रहे, वो कह रहे जेड़े रस्से अपने हथा नाल असी बनाने उन्होंने आप ही फा भी ले लेने। अबलीस कैसे करता है? अबलीस वही फंदे खुद तैयार करता है और वो नाल फा भी देता है। ये सच बात है, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी ना, मैंने कहा ये बंदा सही कह रहा है। उन्हें के मसीह भी पेश किया आंदे, लेकिन मैं एक चीज देखी है कि जेड़ा सूली ते चढ़े है ना ओदे साह नहीं मुके, ओदे साह नहीं मुके, वो मर के फिर जिंदा हुआ है
تو کہتے میں بھی انجدہ مرنا چاہنا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ میں بھی ایسے ہی مرنا چاہتا ہوں. آدھا پھر میں شوق کے بار بار مرندہ کہ میں مر کے تو زندہ ہوں. کیا کمال کی بات سنی. گریٹ سٹیٹمنٹ. دیکھیں کس طرح مسیح کی جو بندگی ہے یا مسیح کی گواہی ہے، کس طرح سے وہ کس طرح خدا اپنا کام لینا چاہتا ہے. نیٹ کے اندر وہ سارے سن رہے ہیں اور پورا وہ خود پڑھ رہا ہے. اور مسلم شخص تھا جو پڑھ رہا تھا اس بات کہ نا سولی تے جڑا بندہ سی وہ دے سارے مکے، لیکن جنہوں نے آپ ہی رسے بنائے وہ آپ ہی فوت ہو گیا، آپ ہی مر مک گیا. لیکن جنہیں دیکھے دوسرے واسطے جان دیتی، جنہیں دوسرے واسطے جان دیتی، وہ ہمیشہ دی زندگی پا جاتا. جڑے اپنے واسطے میں کہنا اپنے پھندے بنانے دیا وہ پھندے چاپے مر مک جاتے. کوئی گل بڑی اچھی گلزار صاحب دس رہے سن، کہتے ہیں کہ ایک تیلی سی، تیلی جو ہوتے ہیں وہ تیل نکالنے والے جو کیا کرتے ہیں جی تیل نکالتے، جو تیل کا بزنس کرتے ہیں. چلیں آپ یوں سمجھ لیں جو تیل کا کیا کرتے ہیں بزنس ڈھونڈتے. بزنس آگے وہ تھوڑا چھوٹے ہوتے تھے تو وہ پیسے کے بڑے کیا ہوتے ہیں پتر ہوتے ہیں. چلیں یوں کہہ رہے ہیں کہ پیسے کا بڑا ان کو وہ ہوتا ہے کہ پیسہ میرا 1 روپیہ بھی ادھر سے ادھر نہ جائے، جمع ہو یہ ہو وہ ہو. تو کہتے ہیں اس کے پاس 4 آنے تھے. 4 آنے کا تیل تھا. 4 آنے کا کیا تھا جی تیل تھا. تو وہ جا رہا تھا تو بڑا رش تھا، جیسے یوں سب لوگ آپ لوگ بیٹھے ہیں سارے دیکھ رہے ہیں، کسی دیکھ رہی 1 روپیہ دکھا کہ یار میں جی چکا گا تو لوگ کہیں گے 1 روپیہ میرا، کسی کہے گی میرا ہے، جیسکا کہے گی میرا ہے. تو کہتے ہیں اب یہ مجھے 4 آنے کا 12 آنے کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن یہ فائدہ میں مس نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن کیا کروں. تو اپنا تیل اتنے ڈول چڑھا، کیا کرتا ہے اپنا تیل گرا دیتا ہے اور وہ 1 روپیہ اٹھا لے. کسی نے سمجھے نہیں ہوگی لوگ سب ادھر ترس کھا دیں یار وہ بیچارہ ادھر بیچارہ دیتے. لیکن وہ ایسا پیسے کا جو وہ بداسر پتر ہے کہ 4 آنے کا نقصان کر کے 12 آنے کا فائدہ اس نے کمایا. وہ کہیں بھی اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا. لیکن خدا کے لوگ میں آپ کو بتاؤں، خدا کے لوگ اپنا نقصان کر کے دوسرے کا فائدہ چاہتے ہیں. یہ ہے خدا کے لوگوں میں اور دنیا دار کے لوگوں میں فرق. وہ اپنے پیسے کا، جان کا، ہر ایک چیز کا نقصان کر کے دوسروں کا فائدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جنہیں دنیا کی چیزوں کی فکر ہوتی ہے وہ بس اپنا فائدہ اپنا فائدہ اپنا فائدہ. تو اس لیے مسیحیت جو ہے وہ یہی ہمیں سکھاتی ہے. ہم ہر وقت اپنے بدن میں یسوع کی موت لیے پھرتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی ہمارے بدن میں ظاہر ہو جائے، تاکہ یسوع کی زندگی ہمارے بدن میں ظاہر ہو جائے، تاکہ زندگی لوگوں تک ونڈیے کہ زندگی لوگوں کو دے، ہم بتائیں کہ یسوع راہ ہے، یسوع حق ہے، یسوع دروازہ ہے، یسوع کے پاس آتا. اس لیے ہم یہ موت یسوع کے لیے پھرتے ہیں تاکہ اس موت میں سے ہم نکل کر یسوع کو ہمیشہ کی زندگی دے، لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی کے پاس لانے کا وسیلہ بن سکے. کیا بن سکے جی وسیلہ. اس لیے لکھا ہے ہم ہر وقت اپنے بدن میں یسوع کی موت لیے پھرتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے بدن میں ظاہر ہو. کیا کریں جی ہم زندگی کو ظاہر کریں. اگر زندگی کو ظاہر ہی نہیں کرنا تو پھر کیا فائدہ جی مسیح نے ہمارے لیے جان دی، مسیح ہمارے لیے ہوا، تو پھر کوئی فائدہ ہے؟ تو خدا آپ سبوں کو برکت دے.